Hello and welcome everybody. I hope you people are doing well and studying well. Okay. Today we are with a new topic, that is circulatory system. In my previous classes I have discussed about RH blood grouping system, ABO blood grouping system. I hope everything is clear to you people. Now we are ready to start with a new topic, that is circulatory system. Now what do you mean by circulatory system? Circulatory system किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है? Circulatory system is a system present in human body which helps in transport of nutrients, minerals as well as hormones from one part of the body to another part of the body. Okay? So circulatory system helps in transport of nutrients, minerals as well as hormones from one part of the body to other part of the body. क्या होता है हमारे बॉडी में? Everything is synthesized in a particular part of the body. Okay? Suppose one thing is synthesized in this part, यहाँ पे बनता है, ठीक है? इसे फिर हमें सेकेंड पार्ट तक पहुंचाना पड़ता है, और वो कौन पहुंचाता है? दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulatory system consists of heart, blood vessels as well as blood itself. Okay, circulatory system के अंदर आपका हार्ट गिरता है, ब्लड वेसल्स गिरता है, as well as ब्लड गिरता है. ठीक है? Now there are two types of circulatory system present in our nature. Okay, so circulatory system are of two types. One is open circulatory system and another is closed circulatory system. Open circulatory system and closed circulatory system. हमें नाम से ही पता चल रहा है. Open means everything is open and closed means bund. Okay, there are two types of circulatory system present in our nature. One is your open circulatory system and another is closed circulatory system. Let us first see open circulatory system. Okay, open circulatory system ये पाया जाता है आपका लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स, कॉकरोच, फिर कुछ भी इंसेक्ट्स. ओके, इन आर्थ्रोपॉड्स बेसिकली. ओके, इन कॉकरोच, देन योर बटरफ्लाईज, सब में ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन योर हायर ऑर्गेनिजम्स. एक्चुअली इट इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स. हमारे बॉडी में भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सपोज दिस इज हार्ट. हार्ट का काम क्या होता है? टू पंप ब्लड. ये हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है हमने. ठीक है, टू पंप ब्लड. सो हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है. ओके, इट पंप्स ब्लड टू ऑल द वेरियस पार्ट्स एज वेल एज ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. सो ये बॉडी ऑर्गन्स है. ठीक है, दिस इज बॉडी ऑर्गन. सो हार्ट पंप्स ब्लड टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. From the body organs, blood is again collected by blood vessels and it is pumped to heart again. Okay. Now you can see these blood vessels are not connected with each other. ये एक दूसरे से connection, इनका connection नहीं है. Okay, they are not connected with each other. Okay. Here the organs are bathing in blood. ऐसा लगता है कि organs आपका blood में नहा रहा है. ठीक है. So everything is open in case of open circulatory system, whereas in case of closed circulatory system, there is heart. This heart pumps blood to various body organs. ये body organ है. Okay. From the body organs, the blood is again collected by blood vessels, and ये blood vessels आपका heart पे blood लेके जाता है. Okay. Now we can see these blood vessels are connected with each other. एक दूसरे से ये कनेक्टेड है. ठीक है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ओके, दिस ऑर्गन्स आर नॉट फ्लोटिंग इन ब्लड. ओके, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज फाउंड इन योर ऑल वर्टिब्रेट्स. ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है. नाउ द एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज In case of closed circulatory system, the blood flows with high pressure. Okay, pressure काफी ज्यादा होता है.
आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बुक में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। ओके, लेट अस सी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ blood vessels and heart. Human circulatory system consists of blood vessels and heart. Okay, ब्लड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, ऑलरेडी इतने दिन से हम ब्लड के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। ओके, हार्ट, ब्लड। So blood vessels are your pipes which transfers blood to various organs in our body. Okay, जैसे कि पाइप होता है जो पानी डिफरेंट जगह पर लेके जाता है, सिमिलरली हमारे बॉडी में भी पाइप्स प्रेजेंट है एंड दोस पाइप्स आर नोन एज blood vessels. There are 3 types of blood vessels present in human body. First is arteries, veins and capillaries. These are the 3 blood vessels present in human body: arteries, veins and capillaries. And heart, okay, that is which is also known as pumping organ in our body. So heart is also known as pumping organ. हम अंडरग्राउंड से पानी उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटर यूज करते हैं, ठीक है। मोटर क्या करते हैं कि पानी को नीचे से पंप करने में हेल्प करता है। सिमिलरली देयर इज अ पंप प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी दैट इज नोन एज हार्ट। हार्ट इज द पंपिंग मशीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। वो क्या करता है कि वो ब्लड को पंप करता है इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। ओके, सो हार्ट इज द मोटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड द ब्लड वेसल्स आर द पाइप्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में डिलीवर करता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड जो हमारे बॉडी में सारा दिन सर्कुलेशन करना बहुत जरूरी है ब्लड का, ठीक है। तो ब्लड वो अपने आप वो सर्कुलेट नहीं कर सकता। सो हार्ट क्या करता है, इट जनरेट्स अ फोर्स और प्रेशर। तो ये प्रेशर के कारण ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है, ठीक है। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेट अस नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, now this is a simplified diagram of human heart. Okay, इसमें मैंने हार्ट के सभी चैम्बर्स को काफी ब्रॉड वे से दिखाया गया है, ठीक है। आपको ये डायग्राम देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट कुछ आई कांट डू एनीथिंग। ओके, सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ओके, ये डायग्राम का पिक्चर मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, ठीक है। तो जब आप ये वीडियो देखोगे प्लीज टेक दैट पर्टिकुलर डायग्राम एंड यू कैन रिलेट इट। ओके, सो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा आपको बिकॉज सी it is quite difficult to shoot video and then upload it, and it's quite time consuming and it is very difficult also. Okay, so please support me. Okay, so structure of human heart. Okay, our human heart consists of 4 chambers in it. 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में। ओके, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में, ठीक है। हमारा हार्ट का 2 साइड है। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज लेफ्ट साइड एंड दिस पार्ट इज राइट। नॉर्मली हम ये साइड को तो बोलते हैं कि दिस साइड इज राइट, but in case of heart it is opposite. Okay, so this part of heart is left side and this part of heart is right side. Okay, and heart ka spelling please note it down, HEART. See, I have noticed many students used to write the spelling of heart as HURT. This is something funny also. Okay, so don't make that mistake. The spelling of heart is HEART. Okay, please note it down. ठीक है, इसमें कभी आप मिस्टेक मत करना, ठीक है। So, human heart consists of 4 chambers. Okay, 4 chambers. What are those chambers? First is left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. These are the 4 chambers of human heart. Okay,
Now our heart is made up of a muscle known as cardiac muscle. The muscle which is present in our heart is known as cardiac muscle. This question comes in entrance examination. Okay, the muscle which makes our human heart is cardiac muscle. Now see, there are three types of muscles present in human body. One is voluntary muscle, another is involuntary muscle, or you can say a smooth muscle, then involuntary muscle, and another is your cardiac muscle. Okay, so this cardiac muscle makes up human heart. Cardiac muscle. Now if I say the size of human heart कितना बड़ा होता है? The size of human heart is that of a clenched fist. एक मुट्ठी जितना होता है. Okay, this much. My heart is this much. Okay, आप सभी अपना मुट्ठी ऐसा करो, ठीक है, हाथ को ऐसा करो, मुट्ठी बनाओ. So that is the size of your heart. Okay, the size of heart is of a size of a clenched fist. Okay, जितना आपका मुट्ठी जितना बड़ा होता है उतना ही आपका heart होता है, ठीक है. So our heart is located on this side, that is your left side of the body. Okay, थोड़ा left side में वो present रहता है. Okay, this side. Okay, heart. This is the size of a heart is of a clenched fist. Next, our heart is covered with a covering. The name of that covering is pericardium. इसमें covering है, इसका नाम है pericardium. Okay, एक कवर से पूरा हार्ट घिरा हुआ है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम. ओके, हार्ट कंसिस्ट ऑफ ए कवरिंग नोन एज पेरिकार्डियम. नेक्स्ट, हार्ट is well separated. Both the side of the heart is well separated by means of a partition known as septum. सेप्टम से दोनों साइड ऑफ हार्ट आपका सेपरेटेड रहता है. ओके, सेप्टम सेपरेट करके रखता है दोनों साइड ऑफ हार्ट. ओके, नाउ सी, आपको ये भी लग रहा हो कि ये डायग्राम तो बहुत फनी है. यस, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट. ओके, आई एम जस्ट योर टीचर. ओके, इवन यू कैन से आई एम जस्ट लर्नर ऑफ बायोलॉजी. ओके, मैं तो सब कुछ तो मुझे नहीं पता, ठीक है, और मैं इतना आर्टिस्ट भी नहीं हूँ. एंड इन साइंस और इन बायोलॉजी आपको आर्टिस्ट बनने का जरूरत नहीं है, ठीक है. जस्ट यू ड्रॉ अ डायग्राम प्रॉपरली. यस, बायोलॉजी में आपको बहुत डायग्राम्स बनाना पड़ेगा. दिस इज द फैक्ट. ओके, बायोलॉजी में आपको बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा, मगर एकदम आर्टिस्ट के जैसे नहीं बनाने से होगा. जस्ट यू ड्रॉ थोड़ा बहुत देखने लायक डायग्राम एंड द लेवलिंग शुड बी करेक्ट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेवलिंग ठीक होना पड़ेगा. ओके, सब डायग्राम का कहाँ पे क्या नाम है वो ठीक रहना पड़ेगा. ओके, लेवलिंग शुड बी क्लियर in biology diagram. Okay, so now as I have already told you, our heart consists of 4 chambers. So let us see the structure of heart. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि structure of heart तो हमने क्लास 10 में ही पढ़ लिया. Yes, you have already studied the structure of human heart in your class 10. But I have to repeat this as this is my duty, because हमारा जो next topic है that is your working of heart as well as cardiac cycle. Before understanding cardiac cycle as well as working of heart, you should know the structure of human heart. This is very important. So I am repeating the structure of human heart again. Okay, yeah, you have already studied these things in your class 10. Okay, but still in order to revise, काफी दिन हो गए, आप लोगों ने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ गए आप लोगों को, काफी दिन हो गया, ठीक है. सो हम फिर रिवाइज कर लेते हैं. सो human heart consists of 4 chambers, that is your left atrium, left ventricle. This side of the heart is known as left side and this part is right side. Now left atrium is connected to left ventricle by means of a valve known as V1. Okay, V1 valve. Okay, also known as bicuspid valve. Okay, इसे bicuspid valve भी कहते हैं, V1 valve. ओके, ये एक गेट का जैसे काम करता है. आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करके रखते हैं गेट जैसा. जब लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ये ओपन हो जाता है. ओके, सो इट एक्ट्स एज अ गेट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड. V1 valve, ऑल्सो नोन एज bicuspid valve. ये आपका एमसीक्यू में आता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आता है. V1 valve is also known as bicuspid valve. Okay, please remember this thing. V1 valve is also known as bicuspid valve.
Now, this right atrium is connected to right ventricle by means of a valve known as V2. V2 valve is also known as tricuspid valve. ये सब कुछ ना आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है ना हो रहा है ना, तो ये सब कुछ मैंने नोट्स पे दे दिया है, ठीक है। आप एक बार नोट्स देख लेना, फिर आप फिर से वीडियो देख लेना, इट विल बी क्लियर टू यू पीपल, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। पहले पहले समझ में थोड़ा तकलीफ होगा, बट यू गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस, इट विल बी क्लियर टू यू पीपल, ओके। सो राइट atrium is connected to right ventricle by means of tricuspid valve. Now, this is pulmonary vein. ओके, यहाँ पे आपको कुछ कुछ वर्ड मिल रहा है, पल्मोनरी वेन, मेन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, मेन वेन, ओके। पल्मोनरी वेन, वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड टू हार्ट, जो हार्ट पे ब्लड लेके आता है, दैट आर नोन एज वेन्स। एंड आर्टरीज are those blood vessels which carry blood from heart to different organs. Okay, हार्ट से ब्लड लेके जाने वाला जो ब्लड वेसल है उसे कहते हैं आर्टरीज, एंड जो हार्ट पे लेके आता है those are known as veins. Okay, so this is the difference between veins and artery. Veins, they carry blood to heart. Okay, veins, and arteries, they carry blood away from heart. Okay, this is the difference between vein and artery. और लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में जो वेन आपका ब्लड लेके आ रहा है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। फिर ब्लड आपका लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल यही सेम ब्लड मूव्स टू मेन आर्टरी। मेन आर्टरी का और एक नाम है, दैट इज एओर्टा। ओके, मेन आर्टरी इज ऑल्सो नोन एज एओर्टा। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मेन आर्टरी। सो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इट इज मेन आर्टरी और एओर्टा। ओके, सो ये क्या करते हैं कि वही ब्लड को आपका लेके जाता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब इन डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर ब्लड आता है, ठीक है, एंड वो ब्लड कौन लेके आता है, और एक वेन, दैट इज मेन वेन। मेन वेन इज ऑल्सो नोन एज वेना केवा। ओके, मेन वेन इज ऑल्सो नोन एज वेना केवा और कावा, वेना कावा भी बोलते हैं उसे, ठीक है। सो इट इज द लार्जेस्ट वेन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सो मेन वेन फिर ब्लड लेके आता है, वही ब्लड आपका राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है, एंड पल्मोनरी आर्टरी टेक्स दैट ब्लड टू लंग्स। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, देयर आर टू अदर वर्ब्स, दैट इज V3। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है, देयर आर टू वर्ब्स V3 एंड V4। V3 एंड V4 वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज semi-lunar valve. They are also known as semi-lunar valve. ठीक है, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4. Okay, these are nothing but just the gates which control the opening and closing of our heart. देखो हमारा हार्ट हमेशा contract relax करता है सारा दिन, 24/7 वो यही काम करता है, contraction relaxation. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड यहाँ से गया। अभी आपको मैं हार्ट किससे काम करता है वो मैं नहीं बोलूंगी, वो मैं आप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अभी अगर मैं अब एक साथ ढाल दूं, देन इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू पीपल। ओके, नाउ जस्ट द मेन मोटो ऑफ दिस क्लास इज टू मेक यू फैमिलियर विद वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, विद द नेम्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। प्लीज ये सब नाम अब अपने दिमाग पे रखना, ये डायग्राम अब अपने कॉपी पर ड्रॉ करना, 2-3 बार ड्रॉ करना, इट विल बी easy for you people. Okay, जल्दी से आपको याद हो जाएगा. This is very important. Okay, so our heart consists of 4 chambers. There is left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक गेट है या एक वाल्व है, दैट इज नोन एज V1 valve, and between right atrium to right ventricle there is another valve that is known as V2 valve, and this right ventricle is connected to pulmonary artery by means of a valve known as V4, and left ventricle is connected to main artery by means of a valve known as V3. Okay, and pulmonary vein brings blood to left atrium, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर जाता है बाय मीन्स ऑफ मेन आर्टरी और एओर्टा टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. ओके, नेक्स्ट मेन वेन ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से आपका वही ब्लड
by means of V4 valve it enters to pulmonary artery and pulmonary artery takes that blood to different to lungs. Okay, so क्या करता है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब द ब्लड हैविंग ऑक्सीजन इन इट. एंड यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गन से जो यहाँ पे ब्लड आता है दैट ब्लड हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. क्योंकि जब हम सांस लेते तो हम कौन सा गैस लेते, दैट इज वी टेक इन ऑक्सीजन. दैट ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू डिफरेंट बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स में जाता है, ठीक है. From the body cells, carbon dioxide is being released by a process known as respiration. वहां पे respiration होता है. ये respiration मैं पढ़ाऊंगी आपको वो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 17. वो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है, चैप्टर नंबर 17. सो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड is being transferred to blood. Okay, now the blood contains more carbon dioxide in it as compared to oxygen. ठीक है. Now the carbon dioxide rich blood is known as deoxygenated blood. यहाँ पे दो टर्म है, oxygenated and deoxygenated. Oxygenated means the blood having oxygen in it, and deoxygenated blood means the blood which doesn't have any oxygen in it. Okay, it has more carbon dioxide in it. Okay, so now both the parts of the heart are well separated by means of a membrane known as septum, or partition known as septum, और blood heart का जो कवरिंग है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं. अभी ये सब तो आप बोलोगे कि मैंने ये तो क्लास 10 में पढ़ लिया, तो 11 में नया क्या है. ओके, द न्यू थिंग अबाउट योर हार्ट स्ट्रक्चर इन क्लास 11 इज अबाउट नोडल मस्कुलेचर. ओके, सो लेट अस सी नोडल मस्कुलेचर. नोडल मस्कुलेचर या नोडल टिश्यू. आपको पता है कि हमारा हार्ट 24/7 बीट करते रहता है. वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है 24/7. ओके, वो कैसे करता है ये काम 24/7 टिल आवर लास्ट ब्रेथ? वो कैसे कर सकता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर इन आवर हार्ट. तो व्हाट इज दिस नोडल टिश्यू? ओके, इन द राइट आर्ट्रियम ऑफ ह्यूमन हार्ट, राइट आर्ट्रियम के ठीक ऊपर में यहाँ पे एक नोडल मस्कुलेचर है. आई एम जस्ट रबिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, यहाँ पे एक मस्कुलेचर है, उसे बोलते हैं SAN नोड. ओके, SAN स्टैंड्स फॉर साइनो आर्ट्रियल नोड. से फुल फॉर्म यहाँ पे अगर लिखती हूँ तो जगह नहीं होगा, ठीक है. फुल फॉर्म आप अपनी बुक से देख लेना या फिर मेरे नोट्स में है वहां से देख लेना. ओके, SAN नोड just in the right upper corner. Okay, SAN नोट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, SAN नोट. ओके, ठीक, SAN नोट के नीचे अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो I can draw here also. ओके, SAN नोट के ठीक नीचे there is another node that is known as AVN node. Okay, now this SAN node and AVN node are connected to each other by means of internodal tracts. इंटरनोडल ट्रैक से दोनों कनेक्टेड रहते हैं. एवीएन से फिर एक नर्व फाइबर निकलता है जिसे कहते हैं एवी बंडल. दिस एवी बंडल गोज एंड डिवाइड्स इनटू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एज वेल एज राइट साइड ऑफ द हार्ट. दोनों साइड में जाके वो डिवाइड हो जाता है. फिर डिवाइड होके ये और ब्रांचेस जनरेट करते हैं, इसे एवी बंडल कहते हैं. ठीक है, एवी बंडल. ये एवी बंडल और फिर डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट तो डिवाइड करते हैं, फिर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस जनरेट करते हैं. दिस स्मॉल ब्रांचेस आर नोन एज Purkinje fibers. Purkinje is a name of a scientist. Okay, वो साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा, Purkinje fibers. Purkinje fibers are nothing but small branches of AV bundle. Okay, that is atrioventricular bundle. उसका small branches है. This Purkinje fibers plus the left and the right branching is known as bundle of His. Okay, यहाँ पे bundle of His लिख देती हूँ. Bundle of His. His is nothing but name of a scientist. Now, what is bundle of His? It is
Purkinje fibers plus right and left bundle. Purkinje fibers plus right and left bundle is known as bundle of His. His is nothing but name of a scientist. Okay. Now इसे मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपका राइट आर्ट्रियम में देयर इज अ नोड नोन एज SAN नोड एंड ठीक इसका नीचे है AVN नोड. दिस इज SAN नोड, दिस इज AVN नोड. बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ इंटरनोडल ट्रैक्ट. AVN नोड फिर डिवाइड करता है, AV नोड से आपका AV बंडल जनरेट करते हैं. AV बंडल फिर राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं एंड इट डिवाइड्स फर्दर. दिस फर्दर ब्रांचिंग इज नोन एज Purkinje fibers. This Purkinje fibers plus AV bundle is known as bundle of His. Okay. Now what is the advantage of this nodal tissue? ये nodal tissue का advantage क्या है? Okay. The only advantage of this nodal tissue is this nodal tissue has the capacity to generate action potential, that is signal. वो signal देता है हमारे हार्ट को till our last breath to undergo continuous contraction and relaxation, ताकि हमारा हार्ट continuous contraction और relaxation जो कर पाता है because of this nodal tissue only. ठीक है. ये नोडल टिश्यू क्या करता है? इट जनरेट सिग्नल. ये सिग्नल आपका SAN से AVN जाता है, AVN से AV बंडल, AV बंडल से आपका Purkinje फाइबर में जाके ट्रेवल करता है. ठीक है. तो Purkinje फाइबर्स वो पूरा हार्ट में उसे वो सिग्नल को स्प्रेड करता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर्स आवर हार्ट इज एबल टू undergo continuous contraction and relaxation throughout our life. Okay. For this reason, SAN node, that is sinoarterial node, please note it down, SAN node, that is sinoarterial node is also known as pacemaker of human heart. अब बोलोगे pacemaker क्या है? Pacemaker कुछ नहीं, जिनका हार्ट का फंक्शन थोड़ा खराब हो जाता है ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू सम रीजन, एक्सीडेंट वगैरह से, तो क्या होता है कि उनमें कुछ एक डिवाइस यहाँ पे हार्ट में नहीं, चेस्ट पे इंस्टॉल कर देते हैं. ठीक है. उसे हम पेस मेकर कहते हैं. सो हमारे हार्ट में ऑलरेडी एक इंस्टॉल पेस मेकर है. ओके. नेचुरल एक पेस मेकर है, दैट इज SAN नोड. जिनमें SAN नोड खराब हो जाता है उनको आर्टिफिशियली पेस मेकर इंस्टॉल करना पड़ता है. अगर आपको पेस मेकर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल अपलोड ए पिक्चर ऑफ पेस मेकर ऑल्सो. ओके. सो that's all for structure of human heart, and that's all for today's class. Okay. So what we have studied today? First of all, we have studied about circulatory system. Circulatory system के अंदर में हमने पढ़ा that there are two type of circulatory system. That is, one is your open circulatory system and another is closed circulatory system. Okay. Then we have studied about your human circulatory system. Human circulatory system के अंदर में आता है आपका blood, human heart, then your blood vessels. Okay. So we have seen the structure for human heart. Okay. Human heart consists of 4 chambers and हम लोग का ये चारों चैम्बर आपका वेल सेपरेटेड है एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नोडल टिश्यू इन आवर हार्ट. बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ नोडल टिश्यू आवर हार्ट इज एबल टू अंडरगो कंटिन्यूअस contraction and relaxation throughout our life. So that's all for today.